वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो हम सीखने वाले हैं वो हम क्या सीखने वाले हैं कि हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज कैसे करते हैं। वन थिंग आई वुड क्लियरली से दैट यू बीन लर्निंग टेंसेस फॉर quite a long time and still you find that you are unable to speak in English, especially the way you want। और आप ना शुरू से इंग्लिश में टेंसेस वगैरह सीखते ही है बिकॉज इट्स वेरी बेसिक। दिस इज द फंडामेंटल ऑफ द लैंग्वेज, बट स्टिल यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक विद दीज टेंसेस। लेकिन अभी भी आप पाते हो कि आप काफी अच्छी तरीके से ना उनको यूज नहीं कर पाते हो। So the one thing which I would always tell you is that you should be practicing these things on regular basis so that you can see some good results in your spoken English, right? तो आज हम क्या सीखने वाले हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो हमने लास्ट उसमें वीडियो में किया था, बट आज हम क्या करने वाले हैं कि हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कैसे करते हैं, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर एंड हाउ वी कैन पुट दैट स्ट्रक्चर इनटू यूज to be able to speak English with this particular tense, right? So without any further delay, let me start the video so that you can get to know about the structure and how you would be able to say the sentences using this tense, right? Those sentences पर अगर मैं decide करता हूँ ना, they are very much useful, they're very useful because such kind of sentences are the part of our daily lives. So they are going to be quite useful if you know how to translate them. And one thing I would always tell you that don't go for translation kind of thing. Just make it a habit, and then you'll find that now you don't have to think too much about the sentences and their formation because it's not there in your head, and because you've tried it a lot, you practiced it quite hard, and now you can easily make the sentences. So go for regular reading exercises, go for a daily practice, and this is going to help you a lot because you've been taught these structures for quite a long time, but still you struggle with your spoken English। आपको काफी टाइम से पढ़ाए जा रहे हैं, फिर भी आप इसमें स्ट्रगल क्यों करते हो? The one reason that there is a lack of practice. And one more thing I would tell you that and now the question arises, who do you practice with? Who would you practice with? आप किसके साथ में practice करोगे, right? So find some people who you can practice with, or you can also people you can also ask people to help you out, or they can be there with you if they're willing to do so. So just find some people who can help you, find some people who can talk to you, and then this is going to help you a lot, and you would definitely be able to speak good English। आप काफी अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे। So without any further delay, let me start the video। Wait, I'm sharing the screen। राइट। सो दिस इज डे 7, जो 7 दिन है, जो 7वां दिन है, उसमें आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कैसे करते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच यू नीड टू कीप इनटू अकाउंट व्हाइल यू आर स्पीकिंग विद दिस। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है इस सेंटेंस और इस टेंस का यूज करने के लिए, राइट? अगेन आई एम टेलिंग यू, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, इफ यू हिट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम while practicing, you can comment me, just leave a comment in the comment box, and then I will be creating dedicated video keeping those comments in my mind। मैं उन comments को ध्यान में रखते हुए आपके लिए वो dedicated video बनाने वाला हूँ। This is going to resolve all your problems। ये सारी की सारी problems को resolve करने वाला है। And see, whenever I create video, I don't really go with any script and nothing, there is nothing, because I want you to be able to speak in any given situation। मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी सिचुएशन में जिसमें आपको अपने आप को पाते हो उसमें आप अच्छे से बोल सको। You don't have to think too much about what will be the what will the way, or how would you be able to speak। आप कैसे बोल पाओगे, और you don't have anything, you haven't prepared yourself for the same। आपने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया हुआ है। Nothing is going to problem you, create any problem for you। कोई भी चीज आपको प्रॉब्लम नहीं करने वाली है। Just keep practicing and keep commenting so that I will be able to help you in any way possible, right? Just be way में possible होगा, I'll be helping you those people। So now let's start। ये कौन सा tense है? ये past continuous है। As you can see right from here, आप यहाँ से देख सकते हो। Let me choose the pen। Yes, you can see this is past continuous tense, right? So what we have to keep in mind while we are going to use this tense, हमें क्या ये ध्यान में रखना है जब हम टेंस को यूज करने के लिए बात जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो बात है, इट इज द पास्ट। एज यू ऑलरेडी नो, ये पास्ट है, और पास्ट में कोई चीज चल रही थी ये बताने के लिए हमें पास्ट कंटिन्यूस का यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी द फर्स्ट पॉइंट, इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस टेंस कैन बी यूज्ड विद द वर्ड वंडर,
क्या करने के लिए, व्हेन यू आर गोइंग टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट, सो विद दिस वर्ड वंडर आप है ना इस टेंस का यूज कर सकते हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आई वाज वंडरिंग इफ आई कुड टॉक टू मिस्टर आलोक, राइट? कि क्या मैं सोच रहा था कि मैं मिस्टर आलोक से बात करूं या मैं बात कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। सो यू वर जस्ट थिंकिंग, एंड नाउ सी कि जब हम पास्ट में कोई सेंटेंस बोलते हैं, दिस बिकम्स वेरी पोलाइट, राइट? और अगर अब मैं आपको एक सेंटेंस भी बोलता हूँ, जैसे अगर आपको एक सेंटेंस बोलना हो कि क्या मैं मिस्टर सो एंड सो से बात कर सकता हूँ, जैसे इसमें मिस्टर आलोक लिखा है, लुक लेट्स टेक इट फॉर एग्जाम्पल। सो क्या मैं मिस्टर आलोक से बात कर रहा हूँ? सो अगर आपको ये बोलना है कैन आई टॉक टू मिस्टर आलोक, सो दिस इज वेरी डायरेक्ट, राइट? इट डजंट शो एनी पोलाइटनेस, इसमें कोई पोलाइटनेस नहीं है। बट इफ यू से आई वंडर इफ आई कुड टॉक टू मिस्टर आलोक, ठीक है, मैं मिस्टर आलोक से बात करता, इस कन्वेज द सेम मीनिंग, मीनिंग तो वही है, बट दिस सेंटेंस ब्रिंग्स पोलाइटनेस विद इट, राइट? इस सेंटेंस में पोलाइटनेस बहुत है, राइट? इसमें पोलाइटनेस बहुत है। बट इफ यू यूज कैन आई टॉक टू मिस्टर आलोक, सो दिस बिकम्स वेरी डायरेक्ट, doesn't show any respect to the person you want to talk to. And if you say could I talk to Mr. Alok, this becomes a little, this becomes polite than the first one. And when you say, I was wondering if I could talk to Mr. So and so, this becomes very polite, right? So present tenses में भी आप है ना past का use कर सकते हो to make a sentences very polite or to request somebody very politely, right? So sentence जो second जो point है वो क्या है? When you change your mind एंड want टू से, आप जब अपना कुछ है ना अपना मन बदलते हो और कुछ कहना चाहते हो कि मैं ये करना, मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया, तब हम क्या कर सकते हैं? तब भी हम पास्ट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। यू कैन हैव अ लुक एट द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखना, इसमें क्या लिखा हुआ, आई वॉज गोइंग टू इन्फॉर्म यू अबाउट द होल थिंग, बट देन I changed my mind. I mean, I changed what I wanted to say, what I wanted to inform you about. मैं जो भी चीज आपको बताने वाला था, जिसकी भी इंफॉर्मेशन देने वाला था, then I changed my mind, right? फिर मैंने चेंज कर लिया, then I did something else, फिर मैंने कुछ और किया। ये बताने के लिए भी हम past continuous का यूज करते हैं। Next one is to talk about to talk about an action that happens in the middle of a longer action. सपोज कोई चीज पहले से ही चल रही थी और उसके बाद में एक और चीज हो जाती है जो उसके बीच में ही होती है, तो हम पास्ट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी वर हैविंग डिनर ही केम, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ही केम व्हाइल वी वर हैविंग डिनर। सो व्हाट वाज ऑलरेडी गोइंग, आप डिनर कर रहे थे, ऑलरेडी चल रहा था, उसके बीच में क्या हुआ, दैट ही केम। सो ही केम व्हाइल वी वर हैविंग डिनर, while we were having dinner he came, ऐसे भी कर सकते हैं, सेंटेंस को डिपेंड्स ऑन यू, राइट? आप डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन इज to talk about to talk about an action that was going on at some time in past। पास्ट में कोई चीज चल रही थी, ये बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when you came to me, I was waiting with somebody else। मैं किसी और का वेट कर रहा था जब आप मेरे पास में आए थे, राइट? सो लेट्स सी द आइडेंटिटी ऑफ दिस टेंस। इस टेंस की आइडेंटिटी हम देखते हैं, सेंटेंसेस जनरली किस पर खत्म होते हैं? रहा था पर, या फिर हुआ था पर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज वेयरिंग अ रेड साड़ी इन द पार्टी। वो पार्टी में क्या पहने हुई थी? रेड साड़ी पहनी थी, तो पहने हुई थी। इस केस में भी आप ना किसका यूज कर सकते हो? यू कैन यूज पास्ट कंटिन्यूस टेंस, राइट? Next one is let's have an example. Sorry, let's have a look at the rule। इसका जो फॉर्मूला है उस पर देख लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट आएगा, राइट? देन हम was से वर्ब का यूज करते हैं, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट, राइट? और वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म आती है, देन कम्स द अदर वर्ड्स, फिर अदर वर्ड्स हैं वो आते हैं। लेट्स सी हम कहाँ पर was का यूज करते हैं। इट्स रियली वेरी आई वुड से इट्स वेरी एलिमेंट्री क्वेश्चन, राइट? कि हम वॉज का यूज कहाँ पे करते हैं, वर्क का यूज कहाँ पे करते हैं। यू ऑलरेडी नो, यू बीन रीडिंग, यू बीन लर्निंग दीज थिंग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, फिर भी मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज I don't really want to teach you something which is not actually, not complete। मैं आपको वो चीज नहीं पढ़ाना चाहता हूँ जो complete ना हो। So if there is something in the tense, I will tell you that, right? अभी इसमें और भी चीजें होती हैं, but I think spoken English के लिए ये काफी है। और one or two more points
are there which I can share with you, but I think it's sufficient for you to be able to speak in English. आपको इंग्लिश में बोलने के लिए ये sentences मतलब ये जो rules मैंने बताया हुआ, that is quite that is sufficient. They are sufficient actually. नेक्स्ट तो उसमें क्या हम आई के साथ में किसका यूज करते हैं, वॉज का करते हैं, ही के साथ में करते हैं वॉज का यूज, शी के साथ में करते हैं, इट के साथ में करते हैं, दिस के साथ में करते हैं, दैट के साथ में करते हैं, और एनी नेम अगर आ जाता है तब भी हम इसका यूज करते हैं। एंड देन जो भी सिंगुलर्स होते हैं मींस ऑल द सिंगुलर्स विल टेक वॉज बिफोर देम, राइट। it will become, it will come after them, right? So वर्क का हम बताएं तो वर्क का यूज हम यू के साथ में, वी के साथ में, दे के साथ में, दीज के साथ में, दोस्त के साथ में, एंड व्हाट all those plural words or plural nouns will be going with वर्क का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है तुम स्टडी करते समय मोबाइल यूज क्यों कर रहे थे, राइट? सो व्हाट वर यू, व्हाई वर यू यूजिंग मोबाइल फोन व्हाइल स्टडिंग और एट द टाइम ऑफ स्टडी, राइट? फॉर एग्जांपल देखो, व्हाई क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ड क्या आएगी, वर आएगी, किसके हिसाब से, यू के हिसाब से, यू के साथ में वर आता है, यू कैन हैव अ लुक एट राइट ओवर हियर। सो देखो यू के साथ में वर लिखा हुआ है, सो व्हाई वर यू आई एन ची आ जाएगा तो यूजिंग आ जाएगा, क्या चीज, ये मोबाइल फोन, कब, एट द टाइम ऑफ स्टडी और वाइल स्टडिंग, यू कैन गो विद एनी, राइट? आप चाहे एट द टाइम ऑफ स्टडी बोल सकते हो और वाइल स्टडिंग भी बोल सकते हो, इट इज योर चॉइस। नेक्स्ट वन इज वहां आप किससे बात कर रहे थे। किससे बात कर रहे थे, हु पहले आ जाएगा, हु, और आपकी बात आ रही है बिकॉज इट वॉज यू हु वर डूइंग दैट, आप ही ये कर रहे थे तो हम वर का यूज करेंगे, हु वर यू, और क्या कर रहे थे, बात, टॉकिंग टू, कहाँ पे, देयर, हु वर यू टॉकिंग टू देयर, वहां पर आप किससे बात कर रहे थे। नेक्स्ट इज आप फालतू बहाना क्यों बना रहे थे, सिंपल सा, क्यों बना रहे थे फालतू बहाना, तो हम किससे, वाई से स्टार्ट करेंगे बिकॉज क्यों से स्टार्ट हो रहा है, सो वाई वर यू मेकिंग अ लेम एक्सक्यूज, ऐसा क्यों बहाना बता रहे थे, दैट कैन नॉट एक्चुअली, दैट कैन नॉट स्टैंड देयर, नो, मतलब वहां पर चल नहीं सकता आपका आइडिया, मतलब जो एक्सक्यूज है वो, सो वाई वर यू गिविंग, वाई वर यू मेकिंग अ लेम एक्सक्यूज, वाई वर यू गिविंग अ लेम एक्सक्यूज, यू कैन गो विद एनी, राइट। नेक्स्ट वन इज मैं आपको झूठा फंसाने की, ना वो लिखा हुआ, नॉट मैं, कोशिश क्यों कर रहा था, इंग्लिश में झूठे फंसाने को क्या बोलते हैं, फ्रेम करना किसी को, राइट? सो झूठा फंसाना फ्रेम, ये कहीं राइट भी है, मैं यहाँ पर राइट लिख देता हूँ, फ्रेम मतलब होता है किसी को झूठा फंसाना, झूठा फंसाना किसी को, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है वाई वॉज ही, क्योंकि वो ही की वजह से वॉज आए, वाई वॉज ही ट्राइंग टू फ्रेम यू, वो आपको फ्रेम करने का कोशिश क्यों कर रहा था, सो वाई वॉज ही ट्राइंग टू फ्रेम यू। नेक्स्ट वन इज आप मेरी बातों को अनसुना क्यों कर रहे थे, राइट? सो किसी की बातों को अनसुना करना था, टर्न अ डेफ ईयर टू somebody's words or what somebody was saying। सो यहाँ पे क्या आ गया, why were you turning a deaf ear to what I was saying, जो मैं कह रहा था उसका आप अनसुना क्यों कर रहे थे, so why were you turning a deaf ear to what I was saying, right? next one is वो लोग वहां क्यों खड़े थे, तो खड़े थे, इट वाज एक्चुअली इट वाज गोइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ये चल रहा था उस टाइम पे, तो हम पास्ट कंटिन्यूस का ही यूज करेंगे, भले ही इसमें रहा था नहीं आ रहा, बट खड़े थे बिकॉज इट वाज गोइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ये चल रहा था उस टाइम पे, तो हम क्या करेंगे, वाई वर दोस पीपल, वहां वो लोग, वाई वर दोस पीपल स्टैंडिंग देयर, वहां पर ही वो लोग खड़े क्यों थे, राइट? नेक्स्ट वन इज क्योंकि, सॉरी, क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा था इसलिए आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाया, राइट? सो टू सेंटेंसेस आर देयर, राइट? दो सेंटेंसेस हैं रोल्ड इन वन, एक ही सेंटेंस में दो सेंटेंस हैं, सो इसमें अगर हम बात करेंगे कुछ चीज नहीं कर पाया मैं, तो इट शोज माई इनएबिलिटी टू डू समथिंग इन पास्ट, ये पास्ट में हम कुछ नहीं कर पाए ये बताता है, और ये तो बताता है पास्ट में चल क्या रहा था, तो वो बता रहा है, तो इसमें हम कैसे करेंगे, क्योंकि मतलब एज आई वॉज ड्राइविंग, और नहीं कर पाने को अपना जब, व्हेन यू शो योर इनएबिलिटी टू डू समथिंग देन यू यूज कुड, ये इट्स द एबिलिटी ऑफ द पास्ट, राइट? पास्ट की इनएबिलिटी है, तो हमने किसका यूज किया, कुडंट का यूज किया। अगर
प्रेजेंट की एबिलिटी को हमें करना होता तो हम कैन का यूज करते हैं। सो व्हाट कुडंट यू डू। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। पहले तो चीज बता दूं, आई वाज ड्राइव एज आई वाज ड्राइविंग आई कुडंट आंसर योर फोन। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, एज आई वाज ड्राइविंग आई वाजंट एबल टू आंसर योर फोन। मैं नहीं कर पाता, आई वाजंट एबल टू भी कर सकते हो, आई वाज नॉट एबल टू, ऐसे भी बोल सकते हो आंसर योर फोन। नेक्स्ट वन इज, आप कल किसके साथ घूम रहे थे। घूमने किसके साथ में, हैंग आउट विद समबडी, राइट। सो सिंपल से बन जाएगा, हु वर यू हैंगिंग आउट विद यस्टरडे। आप कल किसके साथ में घूम रहे थे, सो हु वर यू हैंगिंग आउट विद यस्टरडे, राइट। नेक्स्ट वन इज, वो सारी बातें पीछे से सुन रहा था। तो किसी की बातें छुपकर सुनना, ऐसे तो हम ईव्स ड्रॉप बोलते हैं, राइट। सो सिंपल सा आ जाएगा, सो ही वॉज ईव्स ड्रॉपिंग, ही वॉज ईव्स ड्रॉपिंग। नेक्स्ट वन इज, कल जब एक्सीडेंट हुआ तब आप वहां क्या कर रहे थे, राइट। सो देखो यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं, एक तो पास्ट इंडेफिनिट है और एक पास्ट कंटिन्यूस है। सो एक तो क्या कर रहे थे, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस, तो हम किससे बनाएंगे, व्हाट वर यू डूइंग देयर यस्टरडे। कब, व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड, जब एक्सीडेंट हुआ तब आप वहां पे क्या कर रहे थे। नेक्स्ट वन इज, कल आप बहुत ज्यादा बोल रहे थे, कल बहुत ज्यादा बोल रहे थे, रियली। सो व्हाट यू वुड से, yesterday, or we can also put this word at the end of the sentence. What, sorry, yesterday you were talking too much, or you were talking too much yesterday, हम ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, कल जब वो मुझसे मिलने आया मिलने आया उस समय मैं नहा रहा था। सो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि एक एक्टिविटी ऑलरेडी चल रही थी, उसके बीच में कुछ हुआ। तो यहाँ पे क्या हो गया कि कल जिस समय में मैं नहा रहा था तो वो मुझसे मिलने के लिए आया, राइट। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, वेट फॉर अ व्हाइल, लेट मी स्क्रोल इट डाउन अ बिट। ठीक है। सो व्हेन ही came to meet me yesterday, what I was doing, I was having a shower, right? मैंने हरा था, or I was taking a bath, I was having a bath, or I was having a shower, I was taking a shower. You can say any of these expressions, right? नेक्स्ट वन इज, मैं किसी का वेट कर रहा था। मैं वहां किसी का वेट कर रहा था, मैं किसी का वेट कर रहा था। सो आई वॉज वेटिंग फॉर समवन देयर, आई वॉज वेटिंग फॉर समवन देयर, मतलब मैं वहां पे किसी का वेट कर रहा था। मैं किसी का वेट कर रहा था लिखा हुआ, बट एक्चुअली मैं यहाँ पे सेंटेंस जो बनाया मैंने, वहां पर किसी का वेट कर रहा था। सो आई वॉज वेटिंग फॉर समवन देयर, राइट। नेक्स्ट वन इज, आप कल कौन सा गाना सुन रहे थे, राइट। सो सिंपल सा। नाउ सी, आई एम नॉट सेइंग विच सॉन्ग, क्यों नहीं, कि बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिलेक्शन। मैं सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई उनमें से कौन सा गाना सुन रहे थे। इफ आई गिव somebody to choose from, if I get something to somebody to choose from, then I would simply be saying which। किसी चीज को मैं दूंगा किसी इंसान को चूज करने के लिए, तो मैं विच का यूज करूंगा। बट या यहाँ पर हम सॉन्ग की बात कर रहे हैं, सो देयर आर सो मेनी सॉन्ग एंड विच वन यू वर लिसनिंग टू। तो इसमें सिंपल सा आ गया, व्हाट सॉन्ग वर यू लिसनिंग टू यस्टरडे। और आप कर भी सकते हैं विच सॉन्ग वर यू लिसनिंग टू यस्टरडे, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, वो आपकी तरफ बार बार क्यों देख रहा था। ये तो इजी है, why was he looking at you again and again? Why was he looking at you again and again? So this is how can make sentences in past continuous, right? जैसे आप है ना past continuous में sentences को बना सकते हो, but make sure that it is very strong, आपकी vocabulary बहुत strong है, because your vocabulary plays a vital role when it comes to speaking flawlessly good English। जब आपको बहुत ही अच्छी बिना किसी गलती के इंग्लिश अगर बोलना है, so आपके vocabulary को अच्छा होना चाहिए। your vocabulary has to be very nice, I mean you should have good number of words in your vocabulary। आपकी vocabulary में काफी सारे words होने चाहिए, because your the if you have number of words, then this makes your expressions very easy। आपके expressions हैं, expressions हैं, they will be very easy, बहुत easy होने वाले हैं। You will not be grouping for the words, आप है ना words को तलाशोगे भी नहीं, because they are at the tip of it, they are at the they are at the back end, and they are at the back, because you have the words at your beck and call, because they will be at your beck and call, वो आपके इशारों पर होंगे। So you can
You can have a very nice conversation with people if you have a good vocabulary. At the same time, it should be you should have the feel for all these structures. You should know the situation perfectly well. अगर आपको situations अच्छे से आती हैं, then you won't really be getting confused. You won't really be hesitating while saying your sentences. अपने sentences को बोलने में you will not be getting नर्वस। आप नर्वस भी नहीं होगे, हेजिटेट भी नहीं करोगे, और आप है ना बिल्कुल कंफ्यूजन में भी नहीं रहोगे, बिकॉज यू ऑलरेडी नो द सिचुएशंस वेरी वेल एंड यू रियली प्रैक्टिस वेरी हार्ड। आपने काफी प्रैक्टिस भी किया हुआ, सो प्रैक्टिस इज रियली रिक्वायर्ड, इज अ मस्ट थिंग फॉर यू टू डू। आपको ये करने के लिए मतलब आपको करना ही करना है ये। सो दिस इज व्हाट आई हैड टू टीच यू इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड, दिस पर्टिकुलर video, not episode, right? So you will now be, I hope that you will be putting everything you've been taught so far into practice, and you would also be commenting, saying or telling me things which are troubling you, or which you are finding difficult to which you are finding difficult while learning. So you'll be letting me know everything. आप है ना सब कुछ बताने वाले हो मुझे. So with this, I'm going to end this lesson, and I hope that you will be learning a lot. And don't forget to subscribe to the channel, because this is something which will keep notifying you whenever the video is dropped, right? So ये आप करते रहो, और अगर आपको बहुत ही अच्छे से इंग्लिश बोलना सीखना है, then don't forget to join this channel, because this is going to give you complete information and complete knowledge of the English language. Or it's my aim, or you can say it's my dream, that I want to educate more and more people to be able to speak English, very, very flawlessly, they should be able to speak freely and very effectively, right? They should not be getting themselves ready before the presentation, because they have practiced so much. They have got the clarity of, on the concepts they have been taught, right? So with this, I'm going to end the video. I'll see you in the next video. Till then, take care.